Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of geography. Dear students, the chapter which is going on is life in the desert, and we have to discuss two topics. One, a hot desert, Sahara, and another one is a cold desert, Ladakh. So we have already discussed about a hot desert, Sahara. Today we are going to discuss about a cold desert, Ladakh. So please be with me for next 30 minutes and open your book, chapter number 12, Life in the Deserts. So dear students, life in the deserts, and today we are going to discuss about Ladakh, a cold desert. So a cold desert, Ladakh. Ladakh is a cold desert and it is known as Khapachan. Khapachan, which means snowland. And it is located in the eastern part of Jammu and Kashmir. ये जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है. सो लद्दाख इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. वन इज ला, मीनिंग माउंटेन पास, एंड अनदर वन इज डाक, मीनिंग कंट्री. सो Ladakh means country of mountain passes. Okay, I'm repeating it one more time. Like Ladakh is made up of two words. La meaning mountain pass and Dak meaning country. So we can say that Ladakh means country of mountain passes. Now about total area of Ladakh. So the total area of Ladakh is about 45,110 square kilometer. It is the area of Ladakh. And if we are going to talk about total population, then the total population of Ladakh is about 3 lakh. Okay, so you just keep it in your mind that total area of Ladakh is 45,110 square kilometer and total population of Ladakh is about 3 lakh. And you know, now Ladakh is a union territory. Okay, then the most striking features in Ladakh are the high mountains and aridity. ये सबसे important and unique feature है कि हाई माउंटेन्स हैं लद्दाख में और एरिडिटी. दीज आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स. दिस कोल्ड डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज. ये ग्रेट हिमालय रेंज के नॉर्थ में है. एंड लद्दाख इज सराउंडेड बाय द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जस्कर रेंज इन द साउथ. लद्दाख जो है वो नॉर्थ में काराकोरम रेंज से सराउंडेड है एंड साउथ में जस्कर रेंज से सराउंडेड है. रिवर इंडस फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और इस रीजन से रिवर इंडस फ्लो करता है. द रिवर्स कट डीप वैलीज एंड गॉर्जेस. इन दिस एरिया द रिवर्स कट डीप वैलीज एंड गॉर्जेस. And Ladakh is also surrounded by glaciers like Gangri glaciers. So I am repeating it one more time. Ladakh is surrounded by the Karakoram range in the north and Jaskar range in the south. River Indus flows through this region, and these rivers cut deep valleys and gorges. And even Ladakh is surrounded by glaciers like Gangri glaciers. The altitude of Ladakh varies from about 3,000 meters in Kargil
to about 8,000 मीटर in the काराकोरम रेंज। जो लद्दाख का एल्टीट्यूड है ना, तो बहुत वेरिएशन है उसमें। अगर कारगिल की बात करें तो कारगिल में ये 3000 मीटर है और इसी तरह से काराकोरम रेंज में 8000 मीटर है। तो एल्टीट्यूड और हाइट में बहुत वेरिएशन है। हाँ, ये अलग बात है कि लद्दाख हैज वेरी फ्यू पीक्स, माउंटेन पीक्स। तो लद्दाख में पीक्स कम है, लेकिन जो हाइट है उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। देन now about climatic conditions. So due to high altitude the climate is cold and dry. जैसे मैंने बताया कि लद्दाख जो है वो हाइट पे है, तो ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, उसके हाइट की वजह से क्लाइमेट बहुत कोल्ड है वहां पर और ड्राई है, मींस रेनफॉल बहुत कम है। देयर इज लिटिल और नो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। वहां पे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या तो बिल्कुल नहीं है या है तो बहुत कम है। सो देयर इज लिटिल और नो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। एयर इज थिन, वहां पे एयर बहुत थिन है और इसीलिए जो सन का हीट है वो बहुत इंटेंस है, बहुत इंटेंस है। द डे टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर सीजन इज जस्ट अबव 0 डिग्री सेल्सियस। अगर समर सीजन में डे टेम्परेचर की बात करें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास या थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है, बट एंड द नाइट टेम्परेचर इज अबाउट -25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन नाइट का जो टेम्परेचर है वो -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सो जस्ट इमेजिन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, जहां पे समर्स में डे टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर नाइट में जो है वो -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। देन थिंक अबाउट विंटर्स। ये तो मैंने आपको समर्स का बताया। थिंक अबाउट विंटर्स। सो विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड द टेम्परेचर इज अबाउट -40 डिग्री सेल्सियस। विंटर्स बहुत कोल्ड हैं लद्दाख में और जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सो यू जस्ट इमेजिन द कोल्ड in Ladakh. The Great Himalayan Range acts as a barrier and does not permit the moisture-laden clouds to enter the region. ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है वो एक बैरियर की तरह से काम करता है और मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स को इस रीजन में इंटर नहीं करने देता। इसलिए मैंने यहां कहा था कि मॉइस्चर लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रेट हिमालयन रेंज these acts as a barrier or it doesn't permit the moisture laden clouds. ये moisture laden clouds को permit नहीं करता कि वो लद्दाख में इंटर कर सके और इसीलिए rainfall is very low as 10 centimeter every year. It is very low. The summer season is almost dry and the supply of water is mostly through the melting of snow on higher altitudes. समर सीजन बिल्कुल ड्राई होता है इधर और वाटर की जो सप्लाई है वो जो स्नो मेल्ट करते हैं ना हायर एल्टीट्यूड से, वही है वाटर सप्लाई का एक तरीका लद्दाख में। तो समर सीजन इज वेरी ड्राई और वाटर की जो नीड है वहां के लोगों की दैट इज फुलफिल्ड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन हायर एल्टीट्यूड्स। देन now we will discuss about flora and fauna of Ladakh. It is difficult to grow plants due to less rainfall and cold climate. मैंने पहले बताया कि लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो बहुत कोल्ड है और रेनफॉल बहुत कम है, वेरी लेस, 10 सेंटीमीटर एनुअल। तो यहां पर प्लांट्स का ग्रो करना बहुत मुश्किल है। However, one can find patches of grass and shrubs. हाँ, वहां पे आपको grass and shrubs के पैचेस मिल जाएंगे। और अगर रिवर वैलीज की बात करें, so in the river valleys,
पॉपुलर्स एंड विलोज ग्रो। रिवर वैलीज के आसपास पॉपुलर्स एंड विलोज ग्रो करते हैं। और वैसे आपको ग्रास एंड श्रब्स के पैचेस मिल जाएंगे। ड्यूरिंग द समर सीजन a variety of fruits such as apples, walnuts, apricots, etc. grow. समर सीजन में वहां पर वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ग्रो कराते हैं, लाइक एप्पल्स, वॉलनट्स, एप्रिकॉट्स। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल इट इज डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो। लेकिन उसके बाद भी आपको वहां पर ग्रास एंड श्रब्स के पैचेस मिल जाएंगे। इन द रिवर वैलीज यू कैन गेट वैलीज एंड पॉपुलर रिवर वैलीज यू कैन गेट पॉपुलर्स एंड विलोज। एंड इन समर सीजन वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आर ग्रोन लाइक एप्पल्स, वॉलनट्स, एप्रिकॉट्स। नाउ अबाउट एनिमल्स। So the important animals found here are yak, wild goats, wild sheep and a variety of dogs. जो important animals हैं लद्दाख रीजन में वो याक, wild goats, wild sheep and a variety of dogs. ये सब animals वहां पाए जाते हैं। Goats and sheep provide milk, meat and hides. तो वहां पे जो गोट्स हैं एंड शीप हैं वो मिल्क, मीट और हाइड्स ये तीनों प्रोवाइड करते हैं। नाउ अबाउट द मेन बर्ड स्पेसीज। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आल्सो एंड द मेन बर्ड स्पेसीज फाउंड इन द लद्दाख रीजन आर रॉबिन्स, रेडस्टार्ट्स, स्नोकॉक्स, ravens, etc. These are the birds which you can find in the region of Ladakh. And what are the birds species? Or they are robins, redstarts, snowcocks, ravens, etc. Some of them are migratory birds. उसमें से कुछ migratory birds भी हैं जो बहुत लंबी दूरी तय करके आते हैं और एक सीजन के बाद दे return. Now we will discuss about people and their economic activities. लद्दाख के लोगों के बारे में और उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में now we are going to discuss in next slides. Look, crops are cultivated during the summer season. लद्दाख में क्रॉप्स जो है वो समर सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। It is sown in May and harvested in September to avoid frost. मई में इसको सोन किया जाता है एंड सितंबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है जिससे फ्रॉस्ट को फेस ना करना पड़े। So crops are cultivated during the summer season. It is sown in May and harvested in September. Why? Because they have to avoid frost. And you know which is the main crop? So wheat is the main crop up to the altitude of 3000 meter above the sea level. 3000 मीटर तक जो एरिया है लद्दाख का वहां का जो मेन क्रॉप है दैट इज व्हीट। ठीक है, तो अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर अबव द सी लेवल व्हीट इज द मेन क्रॉप। देन बार्ली इज ऑल्सो वाइडली ग्रोन एंड इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप। बार्ली भी वाइडली ग्रोन होता है एंड इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्रॉप लाइक व्हीट। So wheat and barley, these are the very important crop of Ladakh.
Grain farming is supplemented by horticulture and livestock rearing. ग्रेन फार्मिंग जो है वो उसके साथ साथ वहां के लोग हॉर्टिकल्चर करते हैं, है ना. दे ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड इवन लाइव स्टॉक रियरिंग. अगर फ्रूट्स की बात करें, सो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स ग्रोन इन लद्दाख आर एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, मेलन्स, एप्रिकॉट्स, मलबरीज. These are the important fruit crops or fruits which are grown by the people of Ladakh. I'm repeating it one more time. They are apples, strawberries, melons, apricots, mulberries, etc. The vegetables grown are peas, potatoes, beans and turnips. वहां के लोग वेजिटेबल्स भी ग्रो कराते हैं एंड दे आर पीज, पोटैटोज, बीन्स एंड टर्निप्स. द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO. द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड न्यू टेक्नोलॉजी टू हेल्प पीपल प्रोड्यूस मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे कि लद्दाख के लोग ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करा सके, प्रोड्यूस करा सके. ठीक है, तो आपको यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO. Along every water course, natural or human made, there is a strip of land under crops. Along every water course, जितने भी water course हैं, natural या human made, वहां पर crops के अंदर एक strip है land का, और उसी को कहते हैं oasis in Ladakh. These are the oasis in Ladakh. Most of the work on the farms is done by women. ज्यादातर जो काम है फार्म्स पे वो कौन करता है? तो those are done by women, most of the work. Even they also manage small business and shops. तो women of Ladakh बहुत काम करते हैं, ठीक है ना. वो फार्म्स में काम करते हैं, they manage small businesses and they are in shops also. They manage shops also. The extensive pastures along the mountain slopes are used for livestock rearing. जो extensive pastures हैं mountain slopes के आसपास, उनको livestock rear करने के लिए यूज करते हैं. बहुत extensive pastures हैं लद्दाख में. Yaks, sheep and goats, they are reared. So yaks, sheep and goats are reared, and you know that these animals are very important. Yak is the beast of burden. जैसे मैंने बताया था ना, सहारा डेजर्ट में camel is the beast of burden. तो in Ladakh region, which is very cold, yak is the beast of burden. It provides milk and its hairs are very useful. They are used to make tents. तो याक से आपको मिल्क भी मिल जाता है और इसके जो हेयर्स हैं उससे वो टेंट बनाने के काम में आता है. देन पश्मीना, यू नो, वेरी वैल्यूएबल मटेरियल. पश्मीना फ्रॉम द गोट्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. वहां के लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो पश्मीना है, जो कि गोट से वो ऑब्टेन करते हैं. द हेयर ऑफ शीप एंड गोट्स आर यूज्ड टू मेक वुलन क्लॉथ. शीप और गोट्स के हेयर से वो क्या बनाते हैं? दे मेक वुलन क्लॉथ्स. वो वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं. ओके, देन as you know that winters are very cold in Ladakh, so during winter no work is done in the fields. Fields में किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता. It is not possible to go there and work there. So during winter there is no work in the fields.
तो व्हाट दे डू, द मेन वर्क देन इज टू लुक आफ्टर द लाइव स्टॉक। उस समय उनका मेन काम क्या होता है, अपने लाइव स्टॉक को देखभाल करना। वीविंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में लोग जो है वीविंग कर लेते हैं, बिकॉज वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। विंटर्स में temperatures are very low as -40 degrees Celsius. So they stayed at their home, they look after the livestock and they do weaving. Weaving is also an important occupation during winter. You know, there are a large number of Buddhist monasteries with traditional gompas. बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज हैं लद्दाख में ट्रेडिशनल गोम्पास के साथ, बहुत फेमस वहां पे बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज भी हैं। सम ऑफ द फेमस वंस आर हेमिस, थिक्से, शे एंड लामायूरू। दीज आर द बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज विथ ट्रेडिशनल गोम्पास एंड दीज आर वेरी फेमस। दे आर हेमिस, Thiksay, She and Lamayuru. And you know, the winter season is also for the time of annual festivals in the Gompas. ये जो winter season है ना, ये गोम्पास में annual festival का भी time है। They celebrate their festivals in the Gompas. Ladakh is one of the few trans-Himalayan areas which is open to outsider visitors. लद्दाख वो ट्रांस हिमालयन एरियाज है, वन ऑफ फ्यू ट्रांस हिमालयन एरियाज जो कि आउटसाइड विजिटर्स के लिए भी ओपन है, और इसीलिए वहां पर टूरिज्म का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। बिकॉज आउटसाइड विजिटर्स आर अलाउड टू कम इन लद्दाख, and this has helped in the development of tourism industry. Tourists from India and abroad visit Ladakh every year, generally between May and October. बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं लद्दाख में, इंडिया के भी लोग और इंडिया से बाहर के भी लोग। वो कब आते हैं जनरली? they come between मई एंड अक्टूबर। वो मई एंड अक्टूबर के बीच में आते हैं। दे विजिट द गोम्पास, वो गोम्पास में विजिट करते हैं। ट्रैक टू मीडोज को ट्रैक करते हैं, ग्लेशियर्स को ट्रैक करते हैं, और जो उस समय मैंने बताया ना कि उनका फेस्टिवल का भी टाइम है। सो दे एंजॉय फेस्टिवल्स, सेरेमनीज ऑल्सो। ठीक है, सो मई एंड अक्टूबर, बिटवीन मई एंड अक्टूबर इट इज द टाइम फॉर विजिटर्स टू कम इन लद्दाख जनरली। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्मॉल विलेज। लद्दाख के ज्यादातर लोग जो है वो स्मॉल विलेजेस में रहते हैं। द हाउसेज इन अ विलेजेस आर मोस्टली बिल्ट अलोंग अ रोड और स्कैटर्ड इन द फील्ड्स। ये जो हाउसेज है ना, वो या तो रोड के दोनों साइड बनते हैं या फिर फील्ड्स में स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है ना, सो दे लिव इन स्मॉल विलेजेस। पीपल इन लद्दाख लिव वेरी क्लोज टू नेचर। लद्दाख के लोग नेचर के बहुत क्लोज हैं। They have evolved methods of meeting challenges posed by the inhospitable environment. मैंने कहा ना, very cold area is Ladakh, तो environment कैसा हो गया? Inhospitable। उसके बाद भी वहां के लोगों ने वो methods evolve कर लिया जिससे वो इस inhospitable environment को face कर सके। इस challenges को उन्होंने face करने के methods खोज लिए हैं। Most people are either Buddhists और Muslims। ज्यादातर लोग जो वहां रहते हैं वो या तो बुद्धिस्ट हैं या मुस्लिम्स हैं। Now the government is making efforts to improve the economy and lifestyle of the people. बहुत सारा काम कर रही है गवर्नमेंट वहां के लोगों के लिए। Introduction and development of irrigation facilities, development of fodder production, improvement in the local breeds of the livestock, planting traditional trees, tapping potential water resources for generating hydroelectricity,
development of the tourism industry and improvement of transport and communication facility। ये सारे काम गवर्नमेंट कर रही है जिससे कि वहां का इकोनॉमी बेहतर हो जाए और वहां के लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो इंप्रूव कर जाए। एट लास्ट अबाउट ले, ले इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख एंड इट इज अबाउट 434 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर बाय रोड। और जो नेशनल हाईवे है 1A, इट कनेक्ट्स ले टू द कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। नेशनल हाईवे 1A जो है वो लेह को कश्मीर से कनेक्ट करता है और ये जो है ये थ्रू जोजिला पास। द टू डिस्ट्रिक्ट लेह एंड कारगिल आर कनेक्टेड बाय एयर सर्विसेज। दो डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख में, लेह एंड कारगिल, एंड दे आर कनेक्टेड बाय एयर सर्विसेज। सो डियर स्टूडेंट्स, today we have discussed about a cold desert Ladakh. That's all for today. We will meet in next class with new topics. Till then, thank you and have a nice day. And especially this chapter is completed. The Ladakh in deserts, Ladakh and Sahara, we have already discussed. So this chapter is completed. Now we will meet in next class with revisions. Till then, thank you and have a nice day.